وہ زمین پر گرا ہوا تھا لیکن کچھ ہوش میں تھا۔ اس کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا، درد سے وہ مر جانے کو تھا جب باہر بیل ہوئی تھی۔ اس طرح ایک طرح سے کاشان کو لگا تھا کہ وہ جیسے پھر سے جینے لگا ہے۔ کچھ دیر بعد کامل اور اس کے ماموں تھے جو اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ خون میں بھرنا لاشیں دیکھ کر چیخے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے جلدی سے ان پر کپڑا ڈالا تھا۔ کاشان درد سے تڑپتا کڑھا رہا تھا۔ کامل کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ پاپا، کاشان زندہ ہے! وہ روتے روتے چیخا تھا۔ وہ اکثر رات کو ان کے گھر آتے تھے، دونوں ہم عمر تھے اور اسٹڈی بھی ساتھ کرتے تھے۔ آج بھی وہ اسی لیے آیا تھا۔ کاشان کو زندہ دیکھ کر کامل کے بابا محمد نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ وہ اسے لے کر جلدی سے ہاسپٹل بھاگے تھے۔ اسے 3 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس کے پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ ارد گرد دیکھتا رہا، پھر اسے یاد آنے لگا۔ اسے ان سب کے چہرے یاد آنے لگے۔ 3 لوگوں کے چہروں پر نقاب نہیں تھا، وہاں صرف ایک چہرے پر نقاب تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا لیکن آنسو تھے کہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ کامل کے بابا اندر آئے تو اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کاشان نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ کامل کے بابا نے اسے گلے سے لگایا تو وہ چپ چاپ ان کے سینے سے لگ گیا۔ فضل شیخ سے جو بھی دشمنی کرتا ہے وہ ایسی ہی برباد ہو جاتا ہے۔ وہ بول رہے تھے لیکن کاشان کا ذہن کچھ اور ہی پلان کر رہا تھا۔ اپنی ننھی بہنوں اور ماں کو سرے عام رسوا ہوتے دیکھنا اسے اپنی ہی نظروں میں گرا گیا تھا۔ وہ معصوم تھا، کبھی کسی سے جھگڑا کرنا، کبھی کسی سے سخت بات کہنا اسے پسند ہی نہیں تھا۔ کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گیا تھا۔ کامل کے بابا اسے اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے۔ اس حادثے نے اسے بدل دیا تھا۔ وہ جنونی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے غصہ اکثر چیزیں توڑ کر نکالنے لگا۔ وہ دیواروں پر مکے مار کر اپنے ہاتھ زخمی کر لیتا۔ اسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بدلہ سوار تھا۔ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ کامل کے بابا نے اسے مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دیا تھا۔ 2 سال وہاں اس کا علاج چلتا رہا، پھر وہ اسے گھر لے آئے تھے اور وہ تھوڑا ٹھیک ہو چکا تھا۔ کامل کے بابا نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروایا تو اس نے وہاں لڑکوں کو مار مار کر حشر بگاڑ دیا۔ کامل بھی اب اس سے خوف کھانے لگا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اسے سمجھانے لگا تھا۔ اور ایسا ہی ایک دن تھا، وہ کالج سے گھر آ رہا تھا جب ایک سنسان گلی میں اس نے ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا۔ وہ 4 آدمی تھے۔ کاشان کو وہ اپنی ماں یاد آنے لگی تھی۔ وہ جنون پن میں سے اس پر پلٹ پڑا۔ انہی کی گن سے اس نے 4 قتل کیے تھے۔ وہ اپنے خون سے سنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی نہیں کانپ رہے تھے۔ اسے حیرت بھی تھی کہ وہ کیسے یہ کر چکا ہے۔ وہ اس لڑکی کو اشارہ دے کر وہ گن لیے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ کئی دن گھر میں چھپا رہا۔ گن اس نے الماری میں چھپا دی تھی۔ کامل نے گن دیکھی تو اس نے شور مچا دیا۔ محمد نے اس سے پوچھا تو اس نے سب بتا دیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اسے نچلے طبقے والے علاقے میں بھیج دیا جہاں وہ عام لڑکوں کی طرح رہنے لگا تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اب ٹرک میں مال لوڈ کروا کر اپنا گزارا کرنے لگا تھا۔ کچھ دن اسے شک ہو رہا تھا جیسے باکس میں کچھ اور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے باکس میں ہوم امپلائیز پیک ہوتی تھیں جو فیکٹری سے بڑے سٹورز میں جاتی تھیں۔ ایک دن اس نے ایک باکس سے ٹیپ ہٹا کر ہلکا سا اندر دیکھا تو وہ سفید پاؤڈر کے پیکٹ تھے۔ کاشان کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ اب لوگوں پر نظر رکھنے لگا تھا۔ کچھ لوگوں سے وہ بات چیت کرنے لگا۔ کئی مزدور ان کاموں میں ملوث تھے۔ ایک مزدور سے اس نے کافی رابطہ بحال کر لیا تھا۔ کاشان نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ فضل شیخ کے لیے اب کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ مزدور سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کاشان کچھ دن پوری ایمانداری سے مال چیک کر کے لوڈ کرنے لگا تھا۔ پھر ایک دن مزدور نے ایک خاص لوگوں والا کارڈ اسے دیا جس سے وہ فضل شیخ کے گینگ میں شامل ہو سکتا تھا۔ کچھ عرصہ سکون میں گزرا تھا کہ کچھ لوگ فیکٹری میں داخل ہوئے تھے اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ وہ لوگ وہی تھے جنہوں نے اس کی ماں اور بہنوں کے ساتھ غلط کیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فیکٹری سے نکل گیا تو وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ہائی کلاس ایریا میں تھے۔ وہاں
پیلس دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ وہ لوگ وہی رہتے ہیں۔ کچھ دن وہ وہاں آ کر راستہ یاد کر رکھتا رہا، پھر ایک دن ماموں سے ملنے گیا۔ ان کی طبیعت خراب تھی، کامل ان سے اچھے سے ملا، وہ کچھ دن وہاں رہنا چاہتا تھا۔ نانی سے بھی وہ اچھے سے ملا تھا۔ ماموں کی طبیعت ایک دن کافی بگڑ گئی تھی، ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ماں تو بچپن میں ہی مر گئی تھی، کامل اب اکیلا رہ گیا تھا۔ ماموں کی موت کے بعد وہ کچھ دن خاموش رہا اور ایک دن ان کی الماری سے گن نکال لی جس سے اس نے قتل کیے تھے۔ کامل نے اس کے ہاتھ میں گن دیکھی تو وہ حیران ہوا، لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ اندر کیسے آ گئے؟ ایک عربی سختی سے اس سے پوچھنے لگا۔ اس نے بزل شیخ کا نام لیا اور کہا کہ وہ ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی سے ایک محفل میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے ایک کارڈ نکالا تو وہ حیران ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر اندر آئے تو اندر ماحول ہی اور تھا، اندر بے حیائی عروج پر تھی۔ وہ اب 24 سال کا ہو گیا تھا۔ بزل شیخ سے ملنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھا تھا۔ کہ کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ ایک آدمی نے اس سے پوچھا تو اس نے گن نکال کر سامنے رکھ دی۔ وہ حیران ہوئے تھے۔ 4 قتل کیے تھے، وہ اعتماد سے بولا تھا۔ واہ، تم تو پہلے ہی سیکھے سکھائے ہو۔ بڑی عمر کے ایک آدمی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کاشان کے چہرے پر اس وقت سختی تھی۔ یہ گن مجھے دو، بدلے میں یہ رکھ لو۔ اسی عربی شیخ نے گن اسے دی تھی جو فل لوڈڈ تھی۔ کاشان نے وہ بھاری گن اٹھا لی تھی۔ اسے چلاؤ، اس نے سامنے دیوار پر گولی چلا دی تھی۔ میں جانتا ہوں مال کہاں کہاں سپلائی ہوتا ہے، اور جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں سچائی جان گیا ہوں تو مجھے اندھی گولی سے اڑا دیں گے۔ یہ بھی تم لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اب بزل شیخ کے بجائے یہاں ایول کنگ کی حکومت قائم ہوگی۔ اس نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گولیاں چلائی تھیں۔ بزل شیخ کا خاص آدمی جو کاشان پر گولی چلانے والا تھا ایک اندھی گولی کا شکار ہو گیا تھا۔ کاشان نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کامل تھا جو ہاتھ میں گن پکڑے کام بھی رہا تھا۔ کاشان طنز سے مسکرایا تھا۔ بزل شیخ آج شاید قسمت کی خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، وہ آج ہی کینیڈا کے لیے روانہ ہوا تھا۔ تم یہاں تک کیسے آئے ہو اور یہ گن کس کی ہے؟ پیلس میں ان دونوں نے اپنی ہمت جرأت سے جو تباہی مچائی تھی وہ دیکھنے لائق تھی۔ کوئی نہیں مان سکتا تھا کہ یہ کام 2 عام سے انسان کر سکتے ہیں، لیکن اندر کی حقیقت کون جانتا تھا؟ کاشان نے پچھلے کئی سال ایسے ہی ضائع نہیں کیے تھے۔ وہ مختلف طریقے سے نشانے لگاتا رہتا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر وہ کئی باکس پر مکے مارتا خود کو زخمی کر لیتا تھا۔ اس کے ذہن میں دھن سوار تھی، کسی طرح وہ بازل شیخ کو مارنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اسے کافی انتظار کرنا تھا۔ کامل کو شوق بھی کاشان کو دیکھ کر چڑھا تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا۔ کامل کی دادی یعنی گرینڈ ماں نے اسے کہا تھا کہ کبھی کاشان کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ یہ گن بابا کی تھی، انہوں نے کافی پہلے خریدی تھی، لیکن چلائی آج میں نے پہلی مرتبہ ہے۔ کامل ڈرتے ہوئے بولا تو کاشان آج کئی سالوں بعد ہنسا تھا۔ اس نے کامل کو گلے سے لگایا تھا۔ ایک آدمی جو کڑھا رہا تھا، کاشان نے اسے گردن سے پکڑا تھا۔ بزل شیخ کہاں ملے گا اور اس پیلس کا مالک کون ہے اور سب خفیہ اڈوں کا بتاؤ مجھے۔ کاشان نے اس کے ماتھے پر گن رکھ دی تھی۔ وہ شخص پہلے ہی درد سے تڑپ رہا تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر وہ غداری کر بیٹھا تھا۔ بزل شیخ کینیڈا میں ہے اور یہ ادریس کمال بادشاہ کا اڈا ہے۔ اصل ڈان ادریس کمال بادشاہ ہے، لیکن وہ نام استعمال بزل شیخ کا کرتا ہے۔ کاشان حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ وہ کیا سمجھا تھا اور یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کہاں ملے گا؟ اس کا کوئی سراغ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا۔ ایول کنگ بہت اچھے سے جان جائے گا۔ کاشان نے اس کی دونوں ٹانگوں پر فائر کر دی تھی۔ وہ سارا پیلس گھوم کر جائزہ لیتے رہے۔ انہیں وہاں بہت سے پیپرز، بہت سے نئے اڈوں کا پتہ چلا تھا۔ کاشان نے وہاں موجود ایک موبائل سے پولیس کا نمبر ملایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کامل حیران ہوتے پوچھنے لگا تھا۔ انہیں اس ایریا کی خبر دوں گا جہاں منشیات بڑی آرام سے فروخت ہو رہی ہے، وہ تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ کامل نے پوچھا تھا۔ وہ کاشان ازغن کو پکڑ سکتے ہیں لیکن ایول کنگ کو نہیں۔ تجوری میں پڑے مختلف ماسک جو سکن جیسے ہی
تھے، ان میں سے ایک ماسک اس نے منہ پر لگایا تھا۔ کامل اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ پولیس کو کال کر کے اس نے وہ موبائل سے سب توڑ دیا تھا تاکہ وہ وہاں کی لوکیشن نہ جان لے، اور اگر جان بھی لیتے تو بزل شیخ کی ریاست میں آنے سے پولیس بھی ڈرتی تھی۔ کاشان نے دوسرے موبائل سے بزل شیخ کا نمبر ملایا لیکن کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے اب اپنی ٹیم تیار کرنی تھی جو اس ریاست کے چپے چپے کو جان جاتی۔ کامل کے چہرے پر بھی ایک ماسک فٹ کر کے وہ وہاں سے نکل کر کلب کی طرف گیا تھا۔ وہ جانتا تھا جتنی اسمگل، جتنے خفیہ کام کلبس، بار، ریڈ لائٹ ایریا میں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے۔ کاشان کے پاس کارڈ تھے، مزید پیپرز بھی آ گئے تھے۔ اب اسے ایسا جوا کھیلنا تھا جس میں سمجھ بوجھ کی ضرورت تھی۔ اس کی ایک غلطی اسے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ اسے بزل شیخ کا کوڈ ورڈ جاننا تھا جس سے وہ آسانی سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا تھا۔ وہ بزل شیخ کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس نے ایک چیز چھان ماری تھی لیکن اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں وہ کارڈ گھوم گیا۔ اس نے کارڈ نکال کر گھورا تھا۔ کارڈ پر بنا گول لوگو وہ کافی دیر دیکھتا رہا اور پھر اسے سراغ مل گیا تھا۔ لوگو میں باریک باریک 3 ورڈ لکھے تھے، AKB، ادریس کمال بادشاہ۔ بزل شیخ کا نام استعمال کرنے والا آدمی شاطر تو تھا ہی لیکن بے وقوف بھی تھا، اور پھر مختلف کلبس، مختلف بارز میں جا کر وہ کوڈ ورڈ یوز کرنے لگا تھا۔ بہت سے لوگ بزل شیخ کے غدار بھی تھے جو اسے کافی انفارمیشن دیتے تھے۔ انہی کے ذریعے اس نے اپنے نام کی دہشت پھیلائی تھی۔ قتل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس اندھیر نگری میں وہ مکمل دھستا چلا گیا تھا۔ شراب کو وہ غم کی کیفیت کم کرنے کے لیے پینے لگا تھا۔ پھر جوہی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ اس وقت ایک کلب میں تھا جب جوہی نے اسے جوس دیا تھا۔ وہ کلب میں کام کرتی تھی اور کافی معصوم تھی، لیکن یہ صرف کاشان کا خیال تھا۔ وہ روز کاشان کے پاس آنے لگی تھی۔ اپنی معصومیت سے وہ کاشان کو گھائل کر رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، سفید رنگت، مناسب سراپا ایک نشہ طاری کرتا تھا، لیکن وہ فاصلے پر ہی رہتا تھا۔ کامل کو جوہی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ پھر ایک دن جوہی کے ساتھ کچھ لوگوں نے زبردستی کی کوشش کی تھی۔ اس کلب میں کاشان نے خون کی ہولی کھیلی تھی۔ ایول کنگ کو قتل کرتے کئی لوگوں نے دیکھا تھا لیکن سب کی زبان سل گئی تھی۔ اسی دوران بہت سے لوگ اس کی زندگی میں ایول کنگ کے حق میں آئے تھے۔ بزل شیخ کا نام اس نے پولیس میں بھی استعمال کیا تھا۔ وہ بزل شیخ کو پکڑ تو نہیں پایا تھا لیکن اس نے اس کا نام بہت خراب کیا تھا۔ لوگ بزل شیخ کو بھول کر اب ایول کنگ کی دہشت سے کانپتے تھے۔ وہ کئی خفیہ خانے کا مالک بن گیا تھا۔ کاشان نے اپنا گھر بیچ کر اور ماموں کی دکان بیچ کر ایک اپارٹمنٹ خریدا تھا۔ اس میں اس نے 2 خفیہ روم بنوائے تھے جس کے بارے میں کامل اور کاشان ہی جانتے تھے۔ کاشان کا دماغ کافی شاطر تھا۔ وہ چیزوں کو 2 طریقے سے دیکھتا تھا، ایک سیدھے رخ سے اور ایک الٹے رخ سے۔ کاشان بلیک پیلس میں ہر مہینے لڑکوں کی بولی لگائی جاتی ہے اور ان سے بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ کام کرنے والا اور کوئی نہیں بزل شیخ ہے۔ وہ کھانا کھا رہا تھا جب کامل نے اسے انفارمیشن دی تھی۔ کھانا چھوڑ کر وہ کمرے کی طرف گیا۔ کچھ دیر میں وہ گن، چاقو جو اس نے خود تیار کروایا تھا اور کٹر پاکٹ میں ڈالا تھا، جس گن سے اس نے پہلا قتل کیا تھا، اس پر اس نے ایول کنگ لکھوایا تھا۔ کچھ دیر میں وہ اسی پیلس کے پاس تھے جو شاندار انداز میں کھڑا تھا۔ اپنی بنائی چھوٹی سی ٹیم کے کچھ لوگوں نے پیلس کو گھیر لیا تھا۔ کاشان اندر، بزل شیخ بھی ہے۔ کاشان کا خون کھول گیا تھا، جس کی تلاش میں وہ اتنے سالوں سے گھوم رہا تھا۔ آج وہ اسے مار ہی دیتا۔ فائرنگ شروع ہو گئی تھی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کاشان اس سے پہلے اندر جاتا ایک 21-22 سالہ کا لڑکا اسے پاؤں میں گرا تھا۔ وہ بہت پیارا تھا لیکن ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ کاشان اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ صاف رنگت، گہری نیلی آنکھیں اور معصوم چہرہ۔ سر، مجھے بچا لیں، بابا میرا سودا کر دیں گے۔ وہ بہت غلط لوگ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ وہ روتے روتے کاشان میں چھپنے لگا تھا۔ کاشان اسے لیے وہاں سے نکل آئے۔ وہ نہ جانے کیوں اسے انکار نہیں کر پایا تھا۔ بزل شیخ ایک بار پھر بچ گیا تھا، اور جب بزل شیخ بچ گیا تو ادریس کمال بادشاہ بھی سلامت تھا۔ تمہارا
तुम्हारा नाम क्या है? अहकाम कमाल बादशाह, वो सहमे हुए बोला था। काशान की आंखें फैल गई। कोई आदमी अपने सगे बेटे के साथ कैसे कर सकता है? लेकिन वो अभी आधा सच जानता था। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? काशान उसे घर ले आया था। काम ने डरते डरते उसे बाप का नाम बता दिया था। अदरीस का नाम सुनकर काशान का खून खौल गया था। कोई अपनी सगी औलाद से गलत काम और उसे क्यों बेचेगा? क्या वो इतना जालिम इंसान था? काशान ने उससे कुछ नहीं पूछा था। वो उसे अदरीस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखकर उसे अपने गैंग का हिस्सा बनाकर अहकाम को ताकतवर, गुस्सीला और निडर बनाया था। ज़ारा का हाथ अब भी कशान के हाथ में था। उसकी आंखों से बहती नमी को उसने अपने हाथों से साफ किया था। कशान, आपको छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकती। आपने अगर बुरे काम किए हैं तो कई काम अच्छे भी किए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी वो आपको माफ़ कर दे, बल्कि हम दोनों माफ़ी मांगेंगे। उसका चेहरा हाथों में भरते वो नरमी से बोलने लगी तो टूटा बिखरा काशान उसके गले से लगा था। मुझसे कभी दूर न जाना। मैंने बहुत सालों बाद तुम्हें पाकर खुशी को महसूस किया है। तुम अगर मुझे छोड़ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। वो उस पर गिरफ्त मजबूत करते सिसकने लगा था। कभी नहीं जाऊंगी, आप भेजेंगे तब भी नहीं जाऊंगी। वो वो उसके गिर्द बाजू हाल करते दुख से बोली थी। काशान काफी देर उसके गले लगा रहा था। उसकी नरमी में ढली हसीन कुर्बत उसे बहकाने लगी थी। ज़ारा ने उससे सामने किया तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। काशान, आपने जूही का नहीं बताया वो आपको क्यों छोड़कर गई थी? मैं जानता था तुम ये सवाल ज़रूर पूछोगी, लेकिन अभी उसका जिक्र करके मैं मूड ख़राब नहीं करना चाहता। अभी मैं अपनी स्वीट क्यूट इनोसेंट हलाल की बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसकी नन्ही सी नाक मरोड़ता वो ड्राइविंग स्टार्ट करने लगा था। ज़ारा का मुंह फूल गया था। काशान उसे देखते हंसने लगा तो उसने मजबूत बाजू पर एक चुटकी काट कर उसके बाजू पर सर रख दिया था। सारा अपने सामने ज़ारा को देखती नीम आंखों से मुस्कुराने लगी थी। अजिया बेगम इन दोनों को मिलता देखकर मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पाई थी। काशान एक शान से सोफे पर टांग रखे बैठा था। सासू माँ, सुना है आजकल आपका धंधा बड़ा सुस्त चल रहा है। अजिया को देखकर वो सर्द आंखों से बोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ज़ारा ने भी आंखें फैलाई काशान को देखा जो न जाने क्या कह रहा था। जिया बेगम जो ज़ारा का प्यारा सा हुलिया ही बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, अब काशान के अगले धमाके पर उनका रंग उड़ गया था। वो आपका भतीजा भी हाथ पर गोली खाकर सुकून में होगा। ज़ारा के लिए तो आज झटकों का दिन था। एवर किंग की दहशत से बचना फिर आसान तो नहीं है। उसने वो गन सामने रखी थी जो आज आते वक्त लाया था। अजी की सांसें जैसे तंग होने लगी। एवर किंग के नाम से ही उनकी जान खुश्क हो गई थी। सारा भी अब माँ का चेहरा देख रही थी। काशान, आप क्या कह रहे हैं और मामा को क्यों गन से डरा रहे हैं? ज़ारा माँ की हालत देखकर पूछने लगी तो काशान ने नरम आंखों से ज़ारा को देखा। उसे टूटकर प्यार आया था ज़ारा पर, जो इस दुनिया की लड़कियों से कई ज़्यादा मासूम थी। टेंशन ना लो ज़ारा, तुम्हारी माँ रोज़ इस गन से कई लोगों को मारती है। वो गोली से कभी भी नहीं डरती। क्यों सारा, मैं ठीक कह रहा हूँ? उसने सारा को देखा तो वो तंजिया मुस्कुरा दी थी। अजिया बेगम का खून खोलने लगा था। ज़ारा नासमझी से काशान को देखने लगी। सारा, बेफिक्र होकर यहाँ रहो। अब तुम्हारा बड़ा भाई है तुम्हारी हिफाजत के लिए। किसी से नहीं घबराना। मेरा नंबर तुम्हारे पास महफूज है। सारा के सर पर हाथ रखकर वो ज़ारा को बाजू से थामता वहां से निकल गया था। काशान, मामा को क्यों तंग कर रहे थे? ज़ारा की खफकी भरी आवाज़ पर काशान ने उसका हाथ लबों से लगाया। मेरी जान, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना तंग किया था, क्या मैं अब बदला भी ना लेता? ज़ारा ने गुस्से से उसे देखा जो अब मुस्कुरा रहा था। ज़ारा से सख्त गुस्से में बात करना जैसे उसे गुनाह जैसा लगने लगा था। वो मेरी मामा है, बेशक उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, फिर भी मुझे अजीज हैं। तुम करो उनकी इज्जत, मैं क्यों करूं? मुझे वो एक आंख नहीं भाती जिसने मेरी ज़ारा को तकलीफ दी थी। उसका मेरी ज़ारा कहना ज़ारा को हर दर्जा अच्छा लगा था। अब वो आपकी जूही भी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है कल से।
वो मुंह बनाते बोली, क्या किया है उसने? मैंने मना किया था उसे पास नहीं जाना, फिर तुम क्यों गई? वो गाड़ी रोककर उसका चेहरा देखने लगा तो ज़ारा बुखला गई थी। कुछ नहीं किया, ज़रूरी नहीं वो मुझे कुछ करेगी तो बुरी लगेगी, बस आप उसे जल्दी घर से निकालें। वो मुंह बनाकर बोली तो काशान मुस्कुरा दिया, बहुत जल्द जाएगी, तुम बस परेशान मत हुआ करो। उसका हाथ थपथपाकर उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की थी। अहकाम आलिया वापस आ गई थे। वो जूही को देखकर हैरान होने लगे, लेकिन काशान की वजह से खामोश रहे थे। कामिल उनसे अच्छे से मिला था। आलिया वार्डरूम में कपड़े सेट करने लगी तो अहकाम बेड पर लेट गया था। आलिया 2 दिन से नोट कर रही थी वो कहीं खोया हुआ है। वो उसे चेहरा देखती रही। उसकी नीली गहरी सी आंखें आलिया को बहुत खूबसूरत लगती थी। घने ब्राउन बाल जो पहले से बढ़ गए थे माथे पर बिखरे थे। वो चीज़ें रख कर अहकाम के पास आई, उसके बाल हटाकर वो सर दबाने लगी तो अहकाम मुस्कुराने लगा। तुम्हें कैसे पता चला मेरे सर में दर्द है? वो उसका दूसरा हाथ थाम कर पूछने लगा तो आलिया मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे अपने मासूम अच्छे शौहर, शरीफ शौहर जो कि वो नहीं, से बहुत मोहब्बत हो गई है। अब मैं बिना कहे उसकी परेशानी जान लेती हूँ। अहकाम ने उसके हाथ लबों से लगा लिए। तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो? वो आंखें मूंद कर पूछने लगा। आलिया ने उसके माथे पर गुलाबी लब रख कर जैसे जवाब दे दिया था, मैं मुंह से भी इजहार चाहता हूँ। वो गुनगुनी में बोला था, अभी क्या किया तो है? वो चिढ़कर बोली, मुझे लंबा वाला इजहार चाहिए। वो शरारतपन से कहने लगा, आंखें अब भी बंद थी। आलिया समझ रही थी वो बहुत परेशान है, लेकिन है कुछ तो ऐसा हुआ जो वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगले दिन भी एक आदमी अहकाम से मिलने आया था, जिससे मिलकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। उसने आलिया की बात पर भी सही जवाब नहीं दिया था। मैं अहकाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, जैसे अहकाम को अपनी बला से मोहब्बत है, उससे ज़्यादा मुझे उससे मोहब्बत है। वो अच्छा बुरा जैसा भी है सिर्फ मेरा है, इससे कोई तकलीफ आएगी तो आलिया भी मर जाएगी। अहकाम ने उसका हाथ जोर से दबाया, जिससे उसकी कहा निकली थी। उसका हाथ सीने पर रखता वो गहरी नींद में चला गया था। आलिया अब भी एक हाथ से उसका सर दबा रही थी। वो घर में दाखिल हुए तो रात हो चुकी थी। अपने कमरे की तरफ बढ़ते ज़ारा और काशान रुक गए थे। सामने जूही लॉन्ग डीप गले वाली ज़ारा की न्यू मैक्सी पहने तैयार खड़ी थी, जिसके ऊपर छोटा सा जालीदार अपर था। ये मैक्सी काशान कल ही लाया था, लेकिन वो अभी ज़ारा को दे नहीं पाया था। ज़ारा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने वो पैकेट देख लिया था पर काशान से नहीं पूछा था। ज़ारा का चेहरा सुर्ख होने लगा था, जबकि काशान की आंखों से शरारे निकलने लगे। जूही मासूम चेहरा बनाए खड़ी थी, जैसे उसके पास कपड़े ही ना हो। तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहना? ज़ारा आज पहली बार चीखी थी। मेरे पास कपड़े नहीं थे, मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने ये पहन लिए। जूही के चेहरे पर ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। ज़ारा ने काशान को देखा, जो सुर्ख चेहरे से जूही को घूर रहा था। ये काशान मेरे लिए लाए थे, तुमने क्यों पहना? कुछ और पहन लेती। वो आगे बढ़ती अपर को खींचने लगी थी। उन्होंने अभी मुझे दिया भी नहीं था और तुमने ये पहन लिया, कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी? जूही उसके शदीद रिएक्शन पर सहम कर काशान को देखने लगी, जो ज़ारा को शेरनी बने देख कर मुस्करा रहा था। उतारो अभी के अभी उतारो। वो ड्रेस खींचने लगी तो आस्तीन एक झटके में फटी आई। कितनी बदतमीज हो तुम! पहले मेरे घर रहने आ गई, अब मेरा ड्रेस पहन लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो मारने को दौड़ी तो काशान ने उसे बाजुओं में जकड़कर अपनी तरफ खींचा। स्टॉप ज़ारा, मैं बात करता हूँ, गुस्सा मत हो। वो नरमी से बोलता सर चूम गया था, जो अब रोने वाली हो चुकी थी। छोड़ो, छोड़े काशान, आपकी वजह से सब हुआ। छोड़े, आप रहें अपनी जूही बीबी के साथ। आप उसके हाथों पर नाखून मारती, वो गिरफ्त से आज़ादी लेती। जूही को धक्का दिए कमरे में बंद हो गई थी। उसके शदीद रिएक्शन का शान से हजम करना मुश्किल था। वो तो अब भी समझ नहीं पा रहा था ये वही मासूम सी ज़ारा है जो जल्दी से सहम जाती थी। जूही, किसी की प्राइवेसी में दखल देना अच्छा नहीं होता। वो मेरी बीवी है, तुमने उसके वार्डरोब क्यों खोली? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे कहती, मैं ला देता। एट लिस्ट ज़ारा के कपड़े तो नहीं पहनती। काशान के ये पैकेट
पैक ड्रेस था, मैंने इसलिए पहना था क्योंकि मुझे उतरान पहनने की आदत नहीं है, और ये तुम भी जानते हो। काशान ने घूर कर उसे देखा। मैं कुछ ड्रेस मंगवाता हूँ, ये चेंज कर लो, फट गया है। वो उसे कहता कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाज़ा खोलने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो अंदर से लॉक था। उसने जिद कर माथा मसला। जूही ने भी तंजिया मुस्कान मुस्कान से उसे देखा था। इन दोनों के दिमाग में पहली लड़ाई आराम से करवा गई थी। अंदर गुस्से से वो वार्डरोब खोले देख रही थी जहाँ जूही ने सारे कपड़ों की हालत बिगाड़ दी थी। वो पैकेट तो काशान वाली साइड पर था, फिर उसने कैसे वो खोल लिया। उसे हैरत भी हो रही थी। उसे रह रह कर अफसोस के साथ गुस्सा आने लगा था। दिल तो चाहा उस जूही के सुनहरे गंदे से बाल खींच दे जिसने उसका ड्रेस तो पहना ही था, उलट फाड़ भी दिया था। रो रो कर उसकी नाक सुर्ख हो गई थी। काशान के दरवाजे पर आवाज़ सुनती वो बहरी बन गई। कुछ देर वो रोती रही थी। वो अपनी कैफियत भी नहीं समझ पा रही थी। वो कौन सा काशान से इतनी मोहब्बत करती थी। नहीं हो मोहब्बत ही तो करने लगी थी। आज उसे एहसास हो रहा था वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गई। काशान के लिए वो पोजेसिव हो गई थी। कमरे की विंडो पर शोर सुनती वो चौंकी तो हैरान रह गई। काशान मासूम सा मुंह बनाए लॉन्ड्री वाले रास्ते से विंडो की तरफ दूसरी तरफ खड़ा था। जारा को हैरत भी हुई थी। वो लॉन्ड्री में 2 बार गई थी लेकिन उसे ये नहीं पता था। लॉन्ड्री में 2 बार गई थी लेकिन उसे ये नहीं पता था वहाँ विंडो भी है जहाँ से उसका कमरा नज़र आता है। लॉन्ड्री के आधे हिस्से पर लॉक लगा हुआ था, तभी वो नहीं समझ पाई थी। वो वैसे ही भी ये घर उसे भूल भुलैया ही लगने लगा था। कहने को अपार्टमेंट था लेकिन 4 कमरों और छोटे से गेस्ट रूम में से भी न जाने कितने रास्ते बने हुए थे। काशान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो मुंह फुलाए बोली तो वो ना चाह कर भी सीरियस होने लगा। ज़ारा, दरवाज़ा खोलो, वो सख्ती से बोला तो सब्ज नगीनों में पानी भर कर वो काशान को देखने लगी। ओके, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो मुझे फिर गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा, और वहाँ तो जूही रहती है। ज़ारा का खून खोल उठा था। उसने लैंप उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर फेंका तो कीमती लैंप का नाजुक हिस्सा टुकड़ों में बट गया। ज़ारा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे गुस्सा करने पर मजबूर ना करो, तुम्हें लग जाएगा। एक ड्रेस ही तो था, मैंने तुम्हें अभी दिया नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो गुस्सा क्यों कर रही है। काशान, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। वो रोते रोते चीखी तो काशान उसे नरमी से समझाने लगा, देखो कुछ नहीं होता, ड्रेस ही तो था, मैं तुम पर गुस्सा कभी नहीं कर सकता। वो था तो मेरा ना, जैसे आप सिर्फ मेरे हैं। जूही आपकी कुछ नहीं लगती। आज के बाद वो मेरे कमरे में आई तो मैं उसका गला दबा दूंगी। आप पर मेरे अलावा किसी का कोई हक नहीं है। नाजुक सी जान थी लेकिन बड़ी बातें बड़ी बड़ी कर रही थी। लेकिन उसका मेरा कहना काशान के दिल पर ठंडी फुहार डाल गया था। अच्छा, दरवाज़ा खोलो, मैं उसे समझाता हूँ, और अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो मैं जूही वाले कमरे में चला जाऊंगा। काशान, वो चीख कर दरवाज़ा खोलने लगी तो वो अपने कहके का गला घोंटता तेजी से लॉन्ड्री से बाहर निकल आया था। अंदर आते ही उसने ज़ारा को सीने से लगाया और उसके सर थपकाने लगा था। वो फुट फुट कर रो दी थी। सीने पर अपने नाजुक हाथों के मुक्के मारने लगी थी। दुनिया मेरी दहशत से कांपती है, और यहाँ मैं अपनी बीवी की धमकियों से कांप कर रह गया हूँ। उसका सर चूमता वो तअस्सुफ से कहने लगा तो ज़ारा ने एक और थप्पड़ उसे मारा था। आपको मुझसे ही डरना चाहिए। तुम पर ऐसे लाख ड्रेस कुर्बान, मेरी जान लाया मैं स्पेशल मोमेंट के लिए था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। शुक्र करो तुम्हारी नाजुक जान बच गई। बेबाकी से सरगोशी करता वो उसका चेहरा लाल सुर्ख कर गया था। उसके सीने में चुभती वो शर्म से दहाड़ी हुई थी। रात जूही इनकी लड़ाई देखकर मज़े से सोई थी। सुबह उनको इकट्ठे नाश्ता करते देखकर सुलग कर रह गई थी। काशान हमेशा की तरह से अपने हाथ से नाश्ता करवा रहा था। ब्लू लॉन्ग फ्रॉक में वो कमर पर बाल फैलाए काफ़ी प्यारी लग रही थी। ज़ारा ने गुस्सीली निगाह से जूही को देखा और फिर काशान के हाथ से एक और बाइट खाया। अहकाम बुखार की वजह से बाहर नहीं आया था और कामिल कहीं गया हुआ था। ज़ारा, रूम में जाओ, मैं काम से मिलकर आता हूँ। नरमी से उसका काल थपथपा कर वह काम के कमरे की तरफ जाने लगा। वह तब तक वहाँ रही थी जब तक काशान कमरे में नहीं चला गया था। आलिया अहकाम के पास ही बैठी थी। उसकी सफ़ेद रंगत बुखार से सुर्ख थी। गहरी नीली आंखें बंद थी। आलिया फिक्र से रोने लगी वाली हो रही थी। आलिया, जाओ, ज़ारा तुम्हें बुला रही थी। आलिया को कहता वह अहकाम को देखने लगा जो अब मुश्किल उठ रहा था। काशान ने उसे लेटे रहने का इशारा दिया था। मैं समझता था तुम मुझे सच्चाई बता दोगे, लेकिन तुम शायद मुझे अपना नहीं समझते। खैर, मैं क्या शिकवा करूं। अहकाम सर झुकाने लगा। तुम एक गैंगस्टर हो और गैंगस्टर किसी से नहीं डरते।
तुम अपने खौफ पर काबू पाना सीख गए थे, फिर अब क्यों इतना घबरा रहे हो? काशान की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं आलिया को तुमसे दूर करूं और तुम्हें सज़ा के तौर पर एक महीना क्लब भेज दूं, तो कल सुबह मुझे तुम फ्रेश नाश्ते की टेबल पर नजर आओ। वो मुड़कर बाहर जाने लगा जब अहकाम उठकर बैठा। सर प्लीज़ आलिया को मुझसे दूर मत करें, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी बेताबी पर काशान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। सदा शुक्र था वो मुड़ा हुआ था, वरना अहकाम उसका मस्नूई अंदाज समझ जाता। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम अगर उसको करीब रखना चाहते हो तो हिम्मत करो, दुश्मनों का मुकाबला करो, फिर ही कुछ बात बनेगी। अपनी बात कहकर वो लंबे डाक भरता बाहर निकल गया था, जबकि वो बेबसी से बैठा रह गया था। कामिल की कॉल पर वो सीट से उठ खड़ा हुआ। कैसे हुआ ये? वो ठीक है? कशान को परेशान देखती ज़ारा भी सहमी थी। वो वार्डरोब से अपना कोट पहनने लगा तो ज़ारा उसके करीब आई थी। काशान सब ठीक है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताएं सारा। काशान ने उसका चेहरा हाथों में भरा। सारा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम घबराना नहीं, वो ठीक हो जाएगी, बस तुम रोना मत। उसकी सब नगीनों पर लब रख कर वो उसकी जान निकाल गया था। ज़ारा फूट फूट कर रोती थी। काशान मुझे उसके पास जाना है, प्लीज़ आप मुझे ले जाएं। वो हाथ हटाकर बोली तो काशान ने उसे सीने से लगाया। मैं अभी नहीं ले जा सकता, ये दुश्मन की कोई चाल है, पहले मैं खुद सुराख लगा लूं फिर ले जाऊंगा। ये मोबाइल रखो, मैं इसी नंबर पर कॉल करूंगा। आलिया को कहता हूँ वो तुम्हें खाना खिला देगी। उसकी नरम पेशानी चूमकर वो मास्क लगाता घर से निकला था। जूही ने उसे निकलते देखा तो शातिर तरीके से मुस्कुराने लगी थी। सारा को आईसीयू में ले जाया गया था, उसके माथे पर शदीद चोट आई थी। अजिया बेगम भी पास ही परेशान खड़ी थी। काशान मास्क हुडी पहने आ गया था। अजिया बेगम ने जब उसको देखा तो खौफ से उछल गई थी। क्या हुआ है सारा को? वो तो घर में थी, फिर कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? वो आते ही धाड़ा था। कामिल जो दीवार की ओर में खड़ा सुर्ख आंखों से सारा मनाजर देख रहा था, चेहरे पर हॉस्पिटल मास्क लगाता आगे आया। बोलो क्या किया है तुमने सारा के साथ? वो गनी ने उसे बुरी तरह मारा है, मैं उसे रोकती रही लेकिन उसने बहुत बुरे तरीके से मारा था। ये मेरे माथे पर भी। उनके माथे पर चोट का निशान देखकर काशान परेशान हुआ था, उसे खतरे का एहसास हुआ था। साइड पर जाकर उसने घर का नंबर डायल किया। अहकाम जो पूरी तरह उठा नहीं था, काशान की कॉल देखकर हैरान हुआ। उसने फौरन कॉल पिक की थी। अहकाम ज़ारा को देखो, फौरन जाओ। वो जूही ने खौफ से उसकी आवाज़ रुक रही थी, माथे पर पसीना आने लगा था। काम तेजी से बाहर भागा। ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। जूही भी अपने कमरे में नहीं थी। आलिया फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो अहकाम को ना देखकर बाहर आई। ज़ारा मैम, अहकाम चिल्ला रहा था। क्या हुआ अहकाम? आलिया घबरा गई थी। वो जूही ज़ारा मैम को ले गई है। वो बुखार से नढाल था लेकिन उसे ज़ारा की फिक्र थी। वो ग्रैंड माँ के कमरे की तरफ भागा। ग्रैंड माँ दवाई खाकर सो रही थी। जिसका डर था वही हुआ था। जूही ने चालाकी से ज़ारा को किडनैप कर लिया था। ज़ारा की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। उसके सर पर भारी पत्थर मारा गया था, खून बहने की वजह से वो होश में नहीं आ रही थी। कामिल को वही छोड़ता वो बाहर भागा। किसी भी तरह उसे दुबई वापस जाना था। जूही, आई विल किल यू। वो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ मारकर धाड़ उठा। फोन पर होती बेल ने उसकी तवज्जो खींच ली थी। उसने फोन कॉल उठा ली थी। उस दिन तो मैंने छोटा सा मजाक किया था, लेकिन आज तुम्हारी बीवी को करीब से देखा तो मैं सराहे बिना रह नहीं पाया। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जूही, वेल डन। काशान का खून खौल उठा था। मेरी बीवी को एक खरोश भी आई तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी दफनाने के लिए। अदरीस कमाल बादशाह। अपना नाम सुनकर अदरीस घबरा गया था। वो ये सच कैसे जानता था? तुम मुझे बेवकूफ़ समझते थे लेकिन असल में तुम बेवकूफ़ थे। भजल शेख का नाम इस्तेमाल करने वाला बुज़दिल आदमी, और वो गनी नाम चोर, उसका जो एक हाथ सलामत था वो भी नहीं बचेगा। बकवास बंद करो। अगर अपनी बीवी बचाना चाहते हो, जितने मेरे अड्डों पर कब्जा किया है, जितना मेरा माल हटाया है, सब वापस करो। वो सब जिसका था उसको मिल गया। तुम्हारे लिए कब्र की जगह खाली करवा देता हूँ, इसमें तुम्हारे टुकड़े दफना दूंगा। अदरीस कमाल कहका लगाने लगा था। पहले अपनी बीवी को तो बचा ले। रुक, मैं तुझे अभी लाइव दिखाता हूँ। एवल किंग काशान अजगन
काशान ने सख्ती से आंखें बंद कर ली थी। उसका सुकून, उसकी जिंदगी तकलीफ में थी और वो बेबसी से कुछ कर नहीं पाया था। काशान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। काशान के मोबाइल पर वीडियो आई तो उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसने कॉल पिक कर ली थी। सामने ही ज़ारा बेहोश पड़ी थी और अदरीस मास्क लगाकर उस पर झुका हुआ था। देखो हम दोनों कितने पास पास हैं। वो उसे तकलीफ देने के लिए पास हुआ तो काशान को लगा वो आखिरी सांस ले रहा है। उसने फौरन कॉल काटी थी। अदरीस कॉल कट देखकर सख्त बदमजा हुआ था। उसने जूही को देखा जो सहम कर अदरीस को ही देख रही थी। काशान ने ज़ारा के कान के पीछे लगी चिप से लोकेशन चेक की थी। ये चिप वो अगले दिन ही लगा चुका था जब ज़ारा माल से गायब हुई थी। उसकी हरकत की इंतहा नहीं रही थी क्योंकि वो उसके घर के करीब एक छोटे से कैफे में बंद थी जो बीच से भी थोड़े फासले पर था। मतलब उसने उसकी जगह ही इस्तेमाल की थी। उसे वो अजियत याद आने लगी थी जब उसकी माँ बहन तकलीफ में थी। 10 मिनट का सफ़र रह गया था वो, और 10 मिनट में कुछ भी हो सकता था। 5-7 मिनट में वो वहां पहुंचा। चेहरे पर मास्क अब भी था। वो कैफे को देखता हैरान था। तुम्हें जलील करके तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे उस शौहर को भेजूंगा, फिर उसे अंदाजा होगा कि किसी को की रियासत छीनना कैसा होता है। उसके बाल जकड़कर उसने मुंह पर थप्पड़ मारे तो ज़ारा दर्द से रोती बेहोश होने लगी थी। उसने अपने हाथ इस्तेमाल करके उसे मारना चाहा था लेकिन बेदर्दाना सलूक करते वो ज़ारा की हालत बिगाड़ चुका था। इससे पहले वो मजीद झुकता बाहर से शोर सुनकर वो चौंका तो जूही भी अल्टर हुई। पास खड़े लोगों ने उसको देखा तो घबराने लगे। वो समझ गया था वो बिल्कुल सही जगह पर है। वो उस पर वार करने के लिए बड़े थे जब उसने एकदम पुश्त से गन निकालकर गोलियां चलाई थी। खुद वो एक तरफ हो गया था। वहां भगदड़ मच गई थी। लोगों के बीच से बचता बचाता वो कैफे के अंदर दाखिल होकर किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन के पीछे ही छोटी सी गली थी जो दूसरे रास्ते के लिए इस्तेमाल होती थी। काशान की इतनी जल्दी पहुंच जाने पर उसने जोर से ज़ारा को नीचे फेंका। जूही बुखला गई थी और बजल शेख जो एक तरफ खड़ा हुआ था दरीस कमाल को भागता देखकर समझ नहीं पाया था कि वो पिछले रास्ते से निकल गया था। काशान अंदर आया तो जूही को देखकर ज़ारा को देखने लगा जो जमीन पर गिरी थी। माथे से खून निकल रहा था। उसने तेजी से बजल शेख की टांग पर फायर किया और ज़ारा की तरफ भागा। सुर्ख होती आंखें, लटापटा हुलिया देखकर काशान का दिल लहू हुआ था। उसका सुकून, उसके जीने की वजह जमीन पर खून से लथपथ थी। वह जमीन पर गिरने से के अंदाज में बैठ गया था। जमीन पर इर्द गिर्द इसका खून गिरा हुआ था। माथे और पिछली तरफ जख्म आया था। उसने कांपते हाथों से ज़ारा को बाहों से भर लिया। जूही की उसने खून आलूदा आंखों से देखा और बजल शेख की टांगों पर 2 फायर किए। वो वहीं जमीन पर गिर गया था। जूही खौफ से सफ़ेद पड़ी थी। ज़ारा मेरी जान, मेरे सुकून, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ, इधर देखो, मुझसे लड़ो ज़ारा। वो उसका चेहरा पकड़े चीख रहा था। जूही की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जानती थी वो गुनाह कर बैठी है। 2 दिन गुजर चुके थे। ज़ारा को होश आ गया था। उसके पिछले हिस्से पर ज्यादा गहरा जख्म आया था। काशान उसका बहुत ख्याल रख रहा था। अदरीस को ढूंढने की उसकी कोशिशें और ज्यादा हो गई थी। वो ज़ारा के पास आया तो उसने अनजान नजरों से उसे देखा। उसका दिल कट कर रह गया था लेकिन वो आंखें झपक कर आगे आया और बुके उसके पास रख दिया। उसे सीने से लगाकर पुष्ट थपकाने लगा था। आज तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। मैं तुम्हारे लिए पहले से ज्यादा प्यारी मैक्सी लाया हूँ, मगर मैं अब नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं अब अच्छी नहीं रही। वो फौरन बोली तो उस ऊंचे लंबे मर्द की आंखें भीग गई। ज़ारा तुम मेरा सुकून हो, तुम क्यों मेरा सुकून बर्बाद कर रही हो ऐसी बातें करके। वो उसका चेहरा हाथों में भर कर पूछने लगा तो वो अब भी सफ़ेद आंखों से उसे देख रही थी। कशान को वो वक्त याद आया था जब वो मामू के गले लगा था और उनके उसके पास रोने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि उसने सब खो दिया था। डॉक्टर के मुताबिक अदरीस ने जो ज़बरदस्ती में उसे छुआ था वो बेहोश होने से पहले उसके दिमाग से चिपक चुका था। वो नींद पागल सी इन लम्हों में चली गई थी। काशान का दिल धारे मार मार कर रोने को कर रहा था। अदरीस कमाल को भयानक मौत वो अब जल्द ही देने वाला था। उसने
तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मैं हूँ सब कुछ तुम्हारा। जब मैंने तुम्हें छू कुछ नहीं कहा तो तुम क्यों सर पर सवार कर रही हो? उसके गाल छूकर पूछ रहा था। ज़ारा ने दूर धक्का दिया तो वो बेड के किनारे पर बैठा था, लकड़ा कर नीचे गिरता संभला था। ये देखें, ये भी देखें। अपनी खराशे वाले बाजू और चेहरा दिखाती वो चीज़ें नोचने लगी थी। ड्रिप खींच कर उतार दी थी। सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? पहले गनी, फिर आपने और अब उसने। क्यों किया सबने मेरे साथ बुरा? वो तकिया फेंकती चीखी थी। काशा काशान ने आगे बढ़कर उसे पनाहों में ले लिया था। कुछ नहीं किया। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सामने उसे मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। मुझ पर जुल्म मत करो। वो अब हिम्मत हार रहा था। उसकी जिंदगी उसी के सामने दूर होने लगी थी। काशान, वहाँ 4 लोग थे, सब ने मुझे देखा होगा। चुप, एकदम चुप। उसने उसे सीने से लगाते उसने बाकी लफ्ज रोक दिए थे। तुम मेरे सामने सही सलामत हो, मेरे लिए यही काफी है। जूही तुम्हारी मुजरिम है, उसे तुम खुद सजा देना। बस जल्दी से ठीक हो जाओ। बेताबाना उसका सर थामा चूमता वो ज़ारा को समेट रहा था। ज़ारा की चुप टूटी तो वो फुट फुट कर रो दी थी। काशान उसे फिलहाल रोने ही देना चाहता था। बदर शेख की दोनों टांगों पर गोलियों का जहर फैल गया था। उसकी दोनों टांगें काटी जा चुकी थी। बिस्तर पर पड़ा वो तकलीफ से तड़प रहा था जब काशान मास्क लगाकर अंदर आया। अभी तो वो मुकम्मल ठीक भी नहीं हुआ था और वो फिर आ गया था। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। अदरीस कमाल बादशाह ने हमेशा मेरा नाम इस्तेमाल किया था, मैं तो उसकी कठपुतली हूँ। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा तो काशान ने चाकू से उसका हाथ काटा था। वो दर्द से चीख उठा था। इन्हीं हाथों से मेरी जिंदगी, मेरे सुकून को कमाल के सामने फेंका था। वो तड़प रही है और मैं उसका दर्द कम नहीं कर पा रहा। वो उसको मार कर अधमोया करते काशान का सांस फूल गया। जल्द ही तेरे बेटे को भी तेरे पास भेजूंगा। चाकू उसकी गर्दन में घुसेड़ कर वो वहां से निकल गया था। वो घर आया तो ज़ारा को कमरे में ना पाकर उसकी सांसें रुक गई थी। ज़ारा, ज़ारा कहाँ हो? ज़ारा, आलिया, ज़ारा कहाँ है? वो चीखता हुआ बाहर आया तो आलिया किचन से निकलकर काशान के सामने आई। ऐकान भी बाहर गेट से अंदर आते हैरान हुआ था। काशान ने उसे सद आंखों से देखकर आलिया से पूछा, ज़ारा कहाँ है? बताओ मुझे। वो चीख कर आलिया को दहलका रहा था। वो कह रही थी, मैंने चेंज करना है, वॉशरूम में होगी। तेजी से वो दोबारा कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। वॉशरूम का दरवाजा धकेलता वो दीवाना हुआ। अंदर ज़ारा बाथटब में बेहोश पड़ी थी। उसके बाजू पूरी तरह जख्मी हो गई थी। ज़ारा, क्यों किया? ज़ारा, आंखें खोलो। वो उसके गाल जगड़ कर उसे उठाने लगा था। बाहों में भरकर वो उसे कमरे में लाया था। भीगे कपड़ों को देखकर उसने लाइट बंद की और उसे मोटी शर्ट पहना दी। नरमी से उसे बाहों में भरते वो सिसकने लगा था, तुम शफाफ हो ज़ारा, क्यों नहीं इस हकीकत को कबूल कर रही? क्यों अजियत दे रही हो? उसका सर चूमता वो सिसक कर रो रहा था। वो, तुम सितमगर हो ज़ारा, मेरी सितमगर। तुम्हें मैं कभी इस अजियत के लिए माफ़ नहीं करूँगा। उसे सख्ती से बाहों में भरकर वो कल के लिए इदरीस कमाल की मौत का सामान तैयार करने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। वो सारा को सूप पिला रहा था। सारा को घबराहट भी हो रही थी। वो बोल्ड लड़की थी लेकिन कामिल के सामने वो हल्का सा कांप रही थी। गनी ने उसके सर पर वार किया था। उसका हाथ भी काफी जख्मी था जिसकी वजह से वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी। अजीहा बेगम को वो अब सारा के पास भी नहीं आने देना चाहता था। सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो उसके होंठ टिश्यू से साफ करके बोलने लगा। उसकी खुशबू महसूस करती वो नजर झुकाने लगी थी। कामिल, आप जो बात करना चाहते हैं मामा से कर लेना। बेशक वो जैसी भी है मेरी मामा है। वो जल्दी से बोली तो कामिल मुस्कुराने लगा। और अगर मैंने इस लिहाज से बात ना करनी हो तो? वो होंठ दबाकर हंसी छुपाते बोला। सारा ने जल्दी से सर उठाया तो वो आंखों में जज्बात भर कर उसे ही देख रहा था। मजाक कर रहा हूँ, उनसे भी पूछ लूंगा, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटर हाफ बनोगी? सारा ने उसके अंदाज पर मुश्किल से हंसी रोकी थी। उसका हाथ थाम कर उसने सहलाया तो वह शर्मा कर मुंह मोड़ गई। तुमने रात वो हरकत क्यों की? क्या तुम्हें मेरा एहसास नहीं है? तुम शफाफ हो, मेरी नज़र से देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा। उसके गाल थाम कर बोलता वो दर्द से चूर था। ज़ारा ने दबदबाई आंखों से उसे देखा जिसकी
आंखें सुर्ख हो रही थीं। अब मैं तुम्हें अपने पास आने पर फोर्स नहीं करूंगा। तुम अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो चली जाओ। वो बेड से उठने लगा तो ज़ारा उसके सीने से आ लगती उसे सख्ती से पकड़ गई थी। छोड़ दो ज़ारा, तुम सितमगर हो। मैं समझता था मैं सितमगर हूँ, लेकिन सितमगर तुम हो। उसके दर्द भरे अंदाज पर ज़ारा फूट फूट कर रोई थी। काशान, मैं क्या करूँ? मुझे वो सब भूल नहीं रहा। पहले गनी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था, अब उस आदमी ने, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तुम मेरे साथ जुल्म क्यों कर रही हो? मैं दुनिया के लिए जालिम हूँ, सख्त दिल हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बच्चे जैसा दिल रखता हूँ। काशान, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आपके अलावा मेरा अब कोई नहीं है। मुझे आपसे दूर नहीं जाना। मुझे मत छोड़ें प्लीज। काशान ने उससे नरमी से बाहों में भर लिया था। तुम मेरी सांसों की वजह हो। सांसें कौन खुद छीन लेता है? उसका सर चूमते वो बोला तो ज़ारा ने उसके माथे को छू लिया था। आई लव यू काशान। उसके इतने खूबसूरत अंदाज पर काशान खुशी से दीवाना होता उसको खुद पे छुपाने लगा था। गनी और अदरीस कमाल को मैं तुम्हारे सामने मारूंगा। बस अब तुमने रोना और डरना नहीं है। वो उसका सर सहलाकर बोल रहा था। मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ। अहकाम को जो नंबर कुछ दिन पहले दिया गया था, उसने उसी नंबर पर फ़ोन किया था। दूसरी तरफ से अदरीस के एक आदमी ने सामने बैठे अदरीस को देखा जो शराब के घूंट भर रहा था। आलिया उसके चेहरे की सुर्खी देख कर सहम रही थी। कल बीच पर मिलना, उसने कहकर फ़ोन काट दिया था। अहकाम प्लीज़ उसे ऐसे मत करो। मैं तुम्हें दूर जाते नहीं देख सकती। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम काशान भाई को सब बता दो, वो सब संभाल लेंगे। आलिया, मैं सर से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा। वो मुझसे बात नहीं कर रहे। ज़ारा मैम मेरी मेरी वजह से तकलीफ में है। मुझे इनसे मिलना ही होगा। वो अगर मुझे हासिल करके काशान सर को सुकून से रहना दे सकते हैं तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। मेरा सोचा है तुमने? मैं कैसे रहूँगी? बोलो कैसे रहूँगी मैं? वो उसका गिरबान पकड़े चीखी तो अहकाम ने नजरें फेर ली। मेरी तरफ देखो, जवाब दो मुझे। आलिया ने उसका दाढ़ी वाला गाल अपनी तरफ किया तो वह सुर्ख आंखों से उसे देखने लगा। उसने आलिया को सीने से लगा लिया था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, लेकिन ये जरूरी है। प्लीज मुझे कमजोर मत करो। वो उसको सीने से लगाए सिसका था तो आलिया ने उसकी शर्ट जगड़ ली थी। रात का पहर था जब अहकाम आलिया से मिलता घर से निकल आया था। आलिया के आंसू उसे बेचैन कर रहे थे, लेकिन वो मजबूर था। वो अब अपनी वजह से काशान को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसके पास अब चंद यादें ही बची थी। वो बीच पर पहुंचा तो हर तरफ खामोशी थी। मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा उसके जिस्म को सुकून दे रही थी, लेकिन आज उसे सब अजीब लग रहा था। दूर से एक रोशनी नजर आई तो वो उस तरफ बढ़ गया। आगे छोटी सी शिप थी। शिप के साथ एक गाड़ी खड़ी थी। इदरीस कमाल बादशाह सफेद लिबास पहने आगे आया तो अहकाम को वो अजियत याद आने लगी जो उसने पिछले चंद सालों में बर्दाश्त की थी। मेरा बेटा, मेरा शेर आखिर लौट आया। अब बनेगा अदरीस का बेटा अहकाम बादशाह डॉन। अदरीस उसके गले लगा तो उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे खौफ महसूस होने लगा। सॉरी काशान सर, मैं सब मुसीबतों की वजह रहा हूँ। आज ना मैं जिंदा हूँ रहूंगा और ना ही अदरीस कमाल। उसने चाकू पिछली तरफ से निकाला और अदरीस के पेट में घोंप दिया। अदरीस पीछे को हुआ था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसके आदमी उस पर हमला करने के लिए आगे आए तो उसने चाकू अपनी गर्दन पर रख लिया। तुम मुझे क्या मारोगे? मैं खुद मरने वाला हूँ। इससे पहले वो चाकू गले पर फेंकता एकदम फायरिंग हो गई थी। अदरीस को चाकू गहराई में नहीं लगा था। वो उठकर बेटे की तरफ बढ़ने लगा तो एक गोली उसकी टांग पर आकर लगी और वो वहीं गिर गया था। अदरीस के साथ 8-9 आदमी थे जिन पर बुरी तरह फायरिंग करके इन्हें मार दिया गया था। अहकाम अब तक हैरान खड़ा सब देख रहा था। जब काशान आगे आया, उसके चेहरे पर आज मास्क नहीं था। उसने एक तेज नजर अहकाम पर डाली जो उसे ही देख रहा था। वो ज़ारा को भी साथ लाया था। ज़ारा कांपते हुए काशान के साथ लगी। वो मुझे मार देगा, प्लीज काशान यहाँ से चलें। चुप, अगर तुम जरा सी भी डरी तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। वो आज पहली बार ज़ारा को सबके सामने डांट रहा था। ज़ारा को इस समुद्र से ही नफरत होने लगी। पहली बार यहाँ ही उसने थप्पड़ मारा था और आज दूसरी बार डांट रहा था। अदरी तकलीफ से टांग पकड़े बेहाल हो रहा था। ये पकड़ो, उसके हाथों पर डालो। ज़ारा के हाथ पर एक बोतल रख कर उसने ज़ारा को देखा देखा
सफेद हिजाब में सहम रही थी। काशान, वो खौफ से कांपती तो काशान ने उसे घूरा। डालो। अदरीस का चेहरा रंग सफेद पड़ने लगा था। वो पीछे खिसकने लगा जब काशान ने जारा की बाजू दबाई। उसने तुम्हें इन्हीं हाथों से छुआ था, गिराओ इन हाथों पर तेजाब, फौरन गिराओ। वो अब और सख्ती से बोलने लगा था। जारा ने कांपते हाथों बहती आंखों से बोतल उसके हाथों पर ढाल दी। अदरीस कमाल चीखता रोने लगा था। काशान ने आगे बढ़कर उसके मुंह में दूसरी बोतल डालना शुरू की। ये मेरी माँ बाप दोनों बहनों की अजियत के लिए और ये अपने ही बेटे का सौदा करने के लिए। उसने तेजाब उसके पेट में डाला था जहाँ पहले ही जख्म था। अहकाम के गाल आंसू भीगने लगे थे। अदरीस की हालत देखती जारा ने काशान के सीने में अपना चेहरा छुपाकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली थी। वो कुछ देर में ही तड़प कर मर गया था। एक तरफ कामिल भी खड़ा अहकाम को खूनखार नजरों से घूर रहा था। काशान जारा को लेकर अहकाम के सामने आया तो वह पीछे होने लगा। जारा को इसने सीधा खड़ा किया था। एक जोरदार थप्पड़ उसने अहकाम के मुंह पर मारा तो जारा चीख कर उछली। तुम पागल हो, क्यों की ये हरकत? उसका गरेबान पकड़कर उसने जबड़े पर मुक्का मारा था। काशान, बस करें, वो मर जाएंगे। जारा की सहमी आवाज पर उसने अहकाम के सीने पर हाथ मारकर उसे दूर फेंका। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उंगली उठाकर उसे धमकी देता वहां से जारा को लेकर निकल गया था। एवल किंग ने अपना बदला ले लिया था। अदरीस कमाल बादशाह सुबह तक कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने वाला था। काशान, अहकाम भाई कहाँ जाएंगे? आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आलिया अकेली हो गई है। जारा गाड़ी में बैठी मुसलसल बोल रही थी। जारा, चुप कर जाओ, वो सख्ती से बोला तो वो रोने लगी। दूसरी मर्तबा मुझे डांटा है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो मुंह बसोड़ कर रोने लगी लेकिन काशान ने उसे नहीं देखा। उसे अहकाम पर शदीद गुस्सा था और वो अब काफी दिन उससे बात नहीं करना चाहता था। जारा रोते हुए रात होने की वजह से सो गई थी। काशान उसे मासूमियत से सोता देखकर झुककर गाल छूने लगा। जारा उसकी शेफ महसूस करके कसमसाई थी। मैं तुम्हें कभी नहीं डांट सकता, तुम काशान की धड़कन हो और सबसे बढ़कर मेरी सितम। उसका हाथ चूमकर वो गाड़ी भगाने लगा था। आलिया, अहकाम की आवाज पर फौरन सीधी हुई। सामने ही अहकाम बिखरे हुलिये में था। अहकाम, तुम आ गए। अहकाम वो आगे आकर उसके गले से लगकर सिसकने लगी थी। अहकाम की आंखें लाल थी। आलिया को सीने से लगा था, वो सिसकने लगा था। अहकाम, तुम बहुत जालिम हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो उसे मारती दूर हुई थी। तुमने काशान सर को बताया था? वो आलिया को सामने करता पूछने लगा था। नहीं, तुम मुझे मना करके गए थे। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना क्या कर सकती थी? वो हैरान हुआ था। मुझे सर से पूछना चाहिए। वो आली को छोड़ता बाहर आया जहां काशान लॉन्ज में ही बैठा था। कामिल ने उसे सख्त नजरों से घूरा जबकि काशान ने उसे देखना भी गवारा नहीं किया था। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो आगे आया तो काशान अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सर प्लीज बात सुन लें। वो उसकी तरफ भागा लेकिन काशान ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। काशान बिल्कुल ठीक कर रहा है, तुम इसी काबिल हो। कामिल की आवाज पर उसने घूर कर उसे देखा था। कामिल गुनगुनाता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया तो वो भी सर झुकाए आली की तरफ आ गया था। काशान के उठने से पहले ही वो आज कमरे से निकल आई थी। उसे इस पर गुस्सा भी था क्योंकि कल उसने डांटा था। वो किचन में खड़ी काशान के लिए नाश्ता बना रही थी। वो अभी तक सो रहा था तभी वो आराम से किचन में खड़ी थी। आज उसका काशान के लिए नाश्ता बनाने को दिल कर रहा था। पिछले दिनों वो उसे काफी परेशान भी कर चुकी थी। पैनकेक के साथ चीजी सैंडविच डिसाइड करती वो तैयारी में मगन हो गई। मुझे डांटा था ना, अब मैं मजा चखाऊंगी। खाना बनाते हुए जारा को शरारत सूझी। मोबाइल फोन उठाकर उसने काशान का नंबर डायल किया। वो जानती थी उसे नींद में फोन सुनना कितना बुरा लगता था। तभी नंबर मिलाकर कान से लगाया। कुछ देर बेल बजाती रही लेकिन उसने फोन नहीं उठाया था। वो जान गई थी वो बेसुध सो रहा है। बार बार कॉल करने पर काशान की नींद खराब हुई तो उसने जारा को पकड़ा पुकारा लेकिन वो कमरे में होती तो मिलती। कौन बदतमीज है जो मुझे फोन कर रहा है? किसकी मौत आई है? दांत खिचका कर उसने फोन उठाया तो सामने माई लाइफ का नंबर देखकर उसने खुद को गालियों से नवाजा। गधा हूं मैं। फोन कान से लगाकर उसने सांस लिया। एज एवरीथिंग ओके? तुम कॉल क्यों कर रही हो? आप सो रहे थे? जारा ने मासूमियत से पूछा। कशान ने हैरत से फोन को घूरा। क्या वो पागल थी जो ये सवाल कर रही थी? जाहिर है कमरे में सोया ही जाता है। खैर तुम क्यों पूछ रही
हो और तुम हो कहाँ जो फोन पर बात कर रही हो? मैं आपसे नाराज हूँ और आज आप मुझे मनाएंगे। काशान को आज वो झटके पर झटका दे रही थी। क्यों नाराज हो? आपने रात मुझे डांटा था, मेरे आंसू भी साफ नहीं किए थे और मैंने आपको उठाया था। आप गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे। ज़ारा तुम झूठ मत बोलो, मैं हमेशा जाग जाता हूँ। और नाराज क्यों हो? कल जैसे रात डांटा था और मैं इतना डर गई थी। मेरी हालत देखी थी आपने। आपको मुझसे प्यार नहीं है, ना ही आप मेरी फिक्र करते हैं। वो सूसू करती बोली तो काशान फिक्र से पागल हुआ। अच्छा तुम रो मत, मैं कब तुमसे प्यार नहीं करता, कब फिक्र नहीं करता, और मैं तुम्हारे साथ ही था। काशान को नरी फिक्र ने घेर लिया था। अच्छा आपको फिक्र है? ज़ारा फौरन बोली। कमरे में आओ, फिक्र प्यार सब दिखाऊंगा। उसकी जुर्मानी अंदाज पर ज़्यादा सटपटाने लगी। नहीं, आज मैं कमरे में नहीं आऊंगी, आप खुद बाहर आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मेरा काम करना होगा। वो उंगली मुंह में दबाती बोली थी, काम? मिस ज़ारा, आर यू क्रेजी? आपको लगता है मैं काम करूंगा? आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। वो फिर रोते रोते बोली थी, ज़ारा क्यों तंग कर रही हो? सोने दो मुझे, सो जाएं आप। अब मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आऊंगी, सोना अकेले तकिए पर। उसने दांत पीसे और आंखें बंद कर ली। काशान का कहका फोन से सुनाई दिया। क्या बोल रही थी? बात तो पूरी करो। उसे चिढ़ाता काशान दोबारा बोला तो ज़ारा ने शर्म से पलकें झुका ली। नहीं करनी बात, मैं सामने नहीं हूँ फिर भी शर्मा रही हो। अगर सामने हुआ तो क्या करोगी? काशान की सही बात पर वो इधर उधर देखने लगी। मैं रूम में ही हूँ, कंफर्ट में लेटकर सोने की दोबारा तैयारी कर रहा हूँ। काशान आप बहुत बदतमीज हैं। वो तो मैं बहुत हूँ। वो शौकपन से बोलने लगा। अब मेरी बात सुने, अगर आज आपने रूम की सफाई ना की तो मैं अजमान चली जाऊंगी। उसे धमकी देती वो काल काटती हंसी थी। काशान ने हैरत से फोन को देखा था। व्हाट? कमरे की सफाई और मैं और ये अजमान? उसकी तो मैं। वो कुछ कहता कहता रुक गया। कंट्रोल काशान, कंट्रोल। वो कमरा देखता बुड़बुड़ाया। सोफे पर बिखरे काशान के कपड़े, ड्रेसिंग टेबल पर सारी परफ्यूम और बाकी चीजें बखेरी हुई थी। कम्फर्ट एक तरफ गिरा हुआ था। ये बीवियां भी ना इंसान को क्या से क्या बना देती हैं। सर खुजाता उठा। वो अजमैन चली जाएगी। उसे अजमैन की याद आई तो वो गुस्सा बढ़ गया। उसको मैं पूछता हूँ, उसे कैसे जा ऐसे कैसे जाएगी? वो शर्ट पहनता बाहर बढ़ा। माथे पर 3 लकीरें थी। ज़ारा ने दरवाजे की आहट सुनी थी। वो फौरन स्लेब के नीचे होकर छुप गई। ज़ारा, वो ऊंची आवाज में बोलकर इधर उधर ज़ारा को तलाशने लगा। जरूर लॉन्ड्री में होगी, वो चिल्लाता हुआ वहां बड़ा। ज़ारा हंसी कंट्रोल करती दोहरी हो रही थी, क्या मसला है? क्यों शोर कर रहे हो? कामिल का कमरा लॉन्ड्री के साथ था। वो शोर सुनकर उठ गया था। शट अप, अपना काम करो। वो उसे झड़कता लॉन्ड्री में नजर दौड़ाने लगा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। ये लड़की आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। ग्रैंड माँ के कमरे में भी वो नजर नहीं आई थी। वो ग्रैंड माँ के कमरे में गया तो ज़ारा फौरन अपने बेडरूम में भाग गई थी। अहकाम नींद से बेदार होकर बाहर आया तो काशान को बुखलाहट से देखता हैरान हुआ। काशान ने उसे फिर नजरअंदाज कर दिया था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। ज़ारा कहाँ हो? क्यों तंग कर रही हो? काशान की आवाज अब गुस्से से भारी हो गई थी। ज़ारा को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, मैं कमरा साफ कर दूंगा। वो बुड़बुड़ाता कंफर्ट तय करने लगा तो वो उसके हाथ से फिसलता जमीन पर गिरा। पहले ये कपड़े उठा लेता हूँ। वो सोफे की तरफ आया तो ज़ारा का सांस अटक गया था। वो सोफे के किनारे पर ही छुपी हुई थी। ज़ारा पीछे होने लगी तो वो काशान ने बाजू से पकड़कर उसे सामने किया था। आ वो चीख कर साथ खड़ी हुई और काशान की छत को पकड़ा। अब बताओ कौन सफाई करेगा? कौन नाराज था? उसको कमर से पकड़कर साथ लगाते हुए शरारत से बोला तो ज़ारा के गाल सुर्ख होने लगे थे। मत भूलो मैं एवल किंग हूँ और तुम मेरी क्वीन। तुम्हारी सांसों से मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। उसके गाल पर लब रखता वो शिद्दत से बोला था, बड़े आए मुझे पहचानने वाले। ज़ारा ने मुंह बनाया तो काशान उसे गुदगुदाने लगा था।